Or welcome to Uma's Academy. How are you all? I hope you all must be doing good. So today we are going to know about common errors in English. जी हाँ, बहुत ही टाइम आप देखेंगे कि सेंटेंस बताते समय कुछ ऐसी स्मॉल मिस्टेक्स होती हैं हमसे जिनके बारे में पता भी नहीं चलता एंड लेटर ऑन वी रियलाइज कि इतनी छोटी सी गलती कैसे हो गई. So today we are going to find these common errors and try to reform all the errors whichever we have been committing in these days. So let's get started. फर्स्ट हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की. जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका सब्जेक्ट जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें वर्ब पुट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही डोंट हैव अ लैपटॉप. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. व्हाई? फर्स्ट वी विल सी the right sentence. The right sentence is he does not have a laptop. अब यहाँ सवाल ये उठता है कि why he don't have a laptop is a wrong sentence. The reason behind it, don't should not be used after the subject pronoun. For example, he, she, it. Because he, she, it belongs to third person. और हम थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कभी भी डू नॉट का यूज नहीं करते हैं. ये मैं आपको टेंस के वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो थ्रू टेंस सेक्शन so that it could be easy for you. Now we will see the second example. Does she has a car? Again, it's a wrong sentence. So what will be the right sentence? Does she have a car? Now, again, there is one confusion with you. You must be thinking कि फर्स्ट सेंटेंस में तो मैंने आपको बताया कि अगर हम he, she, it का यूज कर रहे हैं तो वहां हम does का यूज कर सकते हैं. एंड इवन टेंस के वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम she के साथ has का यूज करते हैं बिकॉज she is थर्ड पर्सन. लेकिन यहाँ आखिर में क्यों कह रही हूँ कि does she have a car ये राइट होगा? द रीजन बिहाइंड इट कि अगर आप किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं और आप इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस डज रखते हैं तो वहां आफ्टर योर सब्जेक्ट प्रोनाउन यू नीड टू यूज हैव, नॉट हैज. गॉट इट? सो हियर इट विल बी डज शी हैव अ कार. The helping verb does is used at the beginning and the main verb have denotes position or ownership. So it must be clear with you. Now the next sentence is he did not wrote the test last week. It's a wrong sentence. Again, if you are feeling any confusion, let's go to the right one. He did not write the test last week. Why? What's the reason? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने ये सेंटेंस बनाया है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में. एंड इफ यू गो थ्रू द टेंस वीडियो ऑल्सो यू विल फाइंड कि जब आप सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज करते हैं वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. That's why here your helping verb did is followed by the present tense of the verb and not the past tense form. क्योंकि यहाँ हम past indefinite के नेगेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं. जब आप पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस का इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तब वहां आप राइट के सेकेंड फॉर्म रोट को यूज करते हैं. बट वाइल यूजिंग नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb, means present tense form of verb. So I hope it must be clear with you. Let's proceed to other examples. Now the next example is I came to school by walk. Mostly we use this kind of sentences in our day to day life कि मैं पैदल ही स्कूल गया. तो what is wrong behind it? First we will see the right sentence, then we will find the reason. So the right sentence is I came to school on foot, not by walk. Why? What's the reason? We can say by car, by bike, by bus, by train and by flight. But we cannot say by walk. क्यों?
बिकॉज जो फुट होता है वो हम यूज करते हैं ट्रेवल करने के लिए, कहीं जाने के लिए, लेकिन वॉक, वॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, वॉक आपकी कोई बॉडी का कोई पार्ट नहीं होता जिसके थ्रू आप स्कूल जाओगे। आप अगर पैदल जा रहे हो तो पैरों के थ्रू जाओगे, पैर का यूज करोगे। वॉक, walk is not a word to be used as a part of body. That's why here you will be saying I came to school on foot, not by walk. There is 10 boys in the class. We use this kind of sentences in our daily life, but this is a wrong sentence. So what will be right of it? There are 10 boys in the class. Why? Why we will use there are? क्योंकि देयर है तो हम हमेशा यूज करते हैं देयर इज अ पेन, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ काउ। व्हाई वी आर यूजिंग हियर देयर आर 10 बॉयज? तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए उन एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको रीजन पता चल गया होगा। बिकॉज इफ आई एम सेइंग देयर इज अ बॉय, देयर इज अ डॉग, देयर इज अ काउ, तो मैं वन एनिमल या वन पर्सन या वन सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। बट हियर यू आर फाइंडिंग कि हम बात कर रहे हैं 10 बॉयज की, प्लूरल में है, बहुत सारे बच्चे, 10 बच्चे हैं। और यहाँ ये जो देयर है ना, इट हैज बीन यूज लाइक अ डमी, मतलब देयर इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस, इट इज वर्किंग हियर जस्ट लाइक अ डमी सब्जेक्ट। इसका कोई यूज नहीं है, ये तो हम अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो द रियल सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज 10 boys, and according to 10 boys अगर आपको helping verb रखना है तो plural के according आपका जो helping verb होगा वो भी plural में होगा। That's why here you need to use are. Now it must be clear to you. So let's proceed to other things. यहाँ आपको पता चलेगा कि किन किन सब्जेक्ट्स या किन किन प्रोनाउन के साथ हम किस तरह के वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का या फिर मेन वर्ब का यूज करते हैं। आई, यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम यूज करेंगे हैव या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कम, रन, गो, वॉक, टॉक, सी, लाफ, क्राई, स्टैंड। बट अगर आपका सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन या फिर कोई सिंगल नेम, वहां हम यूज करते हैं हैज, रन्स, गोज, वॉक्स, टॉक्स, सीज, लाफ्स। ये सब जो होंगे ये यूज होते हैं हमारे इन सब्जेक्ट्स या फिर प्रोनाउन के साथ। अब इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Everyone know that the sun rises in the east, but you know this is a wrong sentence. So what will be right of it? Everyone knows that the sun rises in the east, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं everyone की। So if you find everyone, someone, no one, anyone, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए इनका जो मेन वर्ब होता है ना वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी वो मेन वर्ब भी सिंगुलर में ही होगा। तो यहाँ है आपके सामने कुछ सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जिन्हें आप एक बार अगर सरसरी निगाह से देख ले तो ये हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएंगे। एंड कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज दिस ऑल सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन you are bound to use only single verb, means singular verb, means जैसे comes, goes, wants, hears, knows, this kind of verb. Just note this point, all the pronouns written above are considered singular and only singular verb is used with each pronoun above. तो इसके साथ आई थिंक ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी आपको, और अब आगे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर ये दिए हुए प्रोनाउन में से कोई भी प्रोनाउन आपके सामने आ जाए आपके लिए उसमें से कॉमन एरर निकालना बिल्कुल ही इजी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेशन की। बहुत टाइम आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं विच आर यूज्ड इन क्वेश्चन फॉर्म और उसमें आप थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं, बट नाउ नो नीड टू वरी। सो वी विल गो विथ सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज यू वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। अब आप बोलोगे इसमें गलत क्या है, आपने यस्टरडे का यूज किया है तो वेंट का भी आप यूज करोगे। सो व्हाट्स द रीजन दैट वी हैव रिटन इज एज रॉन्ग सेंटेंस? और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मार्क भी किया होगा कि यहाँ गलती क्या है। सी, इन फर्स्ट सेंटेंस यू आर फाइंडिंग अ क्वेश्चन मार्क, और जब आप क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस यूज करते हैं तो वहां आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत डायरेक्ट
सब्जेक्ट से नहीं कर सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। जी हाँ, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्मेशन इन विच यू नीड to use did. After that you can use any subject या फिर कोई भी pronoun and then last में रहेगा आपका question mark. अब इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं auxiliary verb plus subject plus main verb then so on so forth. और ये स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी ही टेंस के फॉर्मेशन में बता चुकी हूँ. इफ यू गो थ्रू दैट वीडियो you will find it very easy to form question kind of sentences. Now the next question is where I can go for a spa. ये भी एक wrong sentence है. क्यों? दिखने में तो ये सही लग रहा है. But when you look at the right sentence, you will find where the mistake is. Where can I go for a spa? क्योंकि जहां भी आप पाते हैं WH क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस वहां क्वेश्चन वर्ड के बाद होता है आपका ऑक्सिलरी न कि सब्जेक्ट. और हमारे इस फर्स्ट सेंटेंस में where I can go for a spa हमने WH के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट को रखा, इसलिए वो सेंटेंस रॉन्ग हो गया. एक कंडीशनल सेंटेंस है आपके सामने. इफ आई विल गो टू मार्केट आई कम टू योर हाउस, बट इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस. सो व्हाट विल बी राइट ऑफ इट? इफ आई गो टू मार्केट आई विल कम टू योर हाउस. क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में हम अपने फर्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में एंड देन वी यूज फ्यूचर एंड डेफिनिट. इस तरह के सेंटेंस में हम पहले रखते हैं इफ देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट में देन सब्जेक्ट प्लस विल एंड वर्ब का बेस फॉर्म. सेकेंड कंडीशनल काइंड ऑफ सेंटेंसेस में हम रखेंगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी पास्ट का वर्ब देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म. और वो वर्ब जो हो सकता है आपका सेंटेंस जो हो सकता है वो अनरियल हो सकता है, इमेजिनरी सिचुएशन पर बेस्ड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल if I have wings I will fly all over the world. Now this sentence is wrong. So what will be the right sentence? If I had wings I would fly over all over the world. यानी ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है जहां हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास पंख होता तो मैं पूरे वर्ल्ड में फ्लाई करता, उड़ता फिरता. So now the next sentence is if I knew it was to visit park yesterday I would have taken my wife with me. ये सेंटेंस भी रॉन्ग है. सो फर्स्ट हम जानते हैं क्या होगा इसका राइट, देन देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर. इफ आई हैड नोन इट वाज टू विजिट पार्क यस्टरडे आई वुड हैव टेकन माय वाइफ विद मी. अब ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें हम इफ के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हैड, फिर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल अगेन based on the past situation. So with this all the examples, I hope अब आपके लिए common error find करना किसी भी sentence में बहुत easy होगा. Still, if you feel any confusion, you can write me in the comment box. And yes, if you like the video, please share and subscribe the channel. Stay connected with Mama's Academy. See you in the next video. Till then, thank you.